یعنی اسی کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک بندہ واقعی دل سے ایک چیز چاہتا ہے کہ اس کے دل کی خوشی ہے، اس کے دلجوئی کے لیے، کس کے لیے؟ دلجوئی کے لیے، دل رکھنے کے لیے۔ اگر خدا نخواستہ یہ بات اندر پیدا ہو جائے کہ پیسہ بچ جائے گا، طبیعت کے مطابق کھانا مل جائے گا، خدمت سے جان چھوٹے گی، کون جو ہے وہ لکڑیاں لا کر جلائے گا، اور کون، یہ سب کرنے کے کام ہیں۔ جیسے کہتے کون نمازیں پڑھے گا، بھائی نماز پڑھنے کا کام ہے، دوسرا کسی جگہ نماز، کون نفلیں پڑھے گا، کون دعوت دے گا، اس طرح کے کون آٹا گوندے گا اور کون روٹی پکا دے گا اور کون یہ بھی کرنے کے کام ہے جس سے بندہ بنتا ہے، اور یہ اس کام کا تو خدمت سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو یہ چیزیں بندے کا دینداری میں مخل بن جاتا ہے۔ وہ صرف دوسرے کے دلجوئی اور دل رکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ مسلمان کا دل، اور کام میں آگے بڑھنے کے لیے ہے کہ اگر اس کو ہم اس کلام کو قبول کر لیں تو ہمارے ساتھ جڑے گا، کام میں آگے بڑھے گا۔ ایک ایک نہیں، بس اتنے کو کافی شافی سمجھے گا کہ بس کھلا دیا یہ میرے لیے بہت ہے، میرے لیے ثواب بہت ہے۔ نہیں، جس کو دیکھا جائے گا کہ اس اکرام کے قبول کرنے میں یہ کام میں جڑے گا، تو اگر کام کا نفع ہے تو اس کے اعتبار سے مشورے سے اس کو قبول کیا جاتا ہے، اور اگر کام کا نفع معذرت کرنے میں ہے تو بندہ معذرت کرے، لیکن اچھے انداز سے کرے۔ یہ نہیں کہ ہم کھانے کے لیے توڑا ہے، ہمارے پاس تو بہت سارا موجود ہے، ہمارا کوئی کمی تھوڑی ہے کہ بس آپ تو کھانا کھلاتے اور پھر نظر نہیں آؤ گے۔ یہ اندازیں ہمارا دینداری کی نہیں ہوتی۔ وہ بیچارہ دل سے ایک بات رکھنا چاہتا ہے، تو ہم اس کو اچھے انداز سے معذرت کر لیں کہ بھئی ہم تو اسی کام کے لیے آئے ہیں، ہم اسی میں لگے رہیں گے، ہمارا بھی فائدہ ہے، اپنا ہی خرچ کریں گے، اپنا پکائیں گے، آپ ہمارے ساتھ جڑے۔ خیر یہ بات تو میں نے اس پر عرض کی کہ ان چیزوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اب جو بات ہے کہ دعوت ہے، تو دیکھو دعوت ہماری 6 نمبروں کی ہے۔ 6 نمبروں سے ہم نے باہر نہیں نکلنا ہے، اس لیے کہ باہر جس کام کے لیے بھی ہم نکل رہے ہیں وہ سب اس کے اندر موجود ہے۔ دین کے جس کام کے لیے ہم ان 6 نمبروں سے باہر نکلتے ہیں وہ سب اسی کے اندر موجود ہے۔ اپنے کو بھی اس پر لانا ہے، دوسروں کو بھی اس پر لانے کی کوشش کرنا ہے۔ تو ہماری دعوت میں ایک تو آخرت کی بات ہو، اپنے اندر اتارنے کی نیت ہو، اللہ ہمیں توفیق دے۔ اگر ایک بندہ بات کر رہا ہے خواہ 100 سے یا 1000 سے یا جتنے بھی زیادہ، اور اندر یہ بات ہو کہ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اس پر آ جائے، جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں تو ماشاءاللہ مجھے تو بات کرنی آتی ہے، تو بہت خطرے کی بات ہے۔ جس بات کا بندہ اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھے گا اور اپنے دل کے اندر اتارنے کی نیت سے نہیں کرے گا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اپنا فائدہ نہیں ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ جب بندہ اس کے اپنا تو اس کا اثر بھی پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم اپنے دل کے اندر اتارنے کی نیت سے ہم بات کرتے ہیں۔ ہم دیکھو ہمارے اندر دین نہیں ہے، لیکن دین کو اپنے اندر لانے کے لیے اس کے تذکرے ہم کرتے ہیں، تو اس میں تو ایک آخرت کی بات کا تذکرہ ہو، مرنے کے بعد والی زندگی، اس کو ہم، یہ سب نبیوں کا مشترکہ کام ہے، اور دنیا سے بے رغبتی۔ دوسری بات یہ کہ کلمے والے یقین کی ہم بات کریں، جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جتنی بھی مخلوق ہے، یہ بات نہیں کہ مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، مخلوق سے کوئی، جتنی بھی مخلوق ہے اس مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ کے، دیکھو جس مخلوق کو اللہ نے جس کام کے لیے بنایا ہے، نفع کے لیے تو اس سے نفع پہنچنا ہے، نقصان کے لیے تو اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ یقین یہ ہو کہ اس مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اللہ اپنے کرنے میں مخلوق کا محتاج نہیں ہے۔ کہاں ٹھیک ہے اللہ سے ہوتا ہے لیکن یہ چیز دو تو کیسے ہوگا؟ تو یہ تو مخلوق کے بارے میں کہو کہ مخلوق پوری ہو لیکن اللہ نہ چاہے تو کیسے ہوگا؟ لیکن یہ بات کہ اگر اللہ نے چاہ لیا اور یہ مخلوق نہ ہو تو کیسے ہوگا؟ تو یہ بات نہیں ہے۔
अल्लाह के इरादे से पूरी मखलूक के बगैर सब कुछ होने का यकीन अंदर उतर जाए और पूरी मखलूक जितनी भी है उससे अल्लाह के इरादे के बगैर कुछ भी नहीं होता। ये मुख्तसर जुमले हमारे बड़ों ने हमें बताए हैं। ये पूरे कुरान और हदीस के खुलासे उन बड़ों ने हमारे सामने रखा है। हमें तो ये एक मामूली जुमले नजर आते हैं, हालांकि ये पूरा खुलासा है। दूसरी बात यह है कि अगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हमारे जिंदगी में हो ये यकीन, तो उन तरीकों की बरकत से अल्लाह हमारा जिंदगी बनाना चाहेगा, हमें कामयाब करेगा। अगरचे हमारे पास पैसे न हो, अगरचे हमारे पास पैसे न हो, क्यों? अल्लाह के वादे पैसों के होने न होने पर नहीं है। हमने पैसों की नफी इस तरह नहीं करनी है, न इस बात करना है न क्या। अगर कोई पैसा तरीकों के मुकाबले में आता है, तरीकों के मुकाबले में आता है, कोई मुल्क तरीकों के मुकाबले में आता है, माल तरीकों के मुकाबले में आता है, तो हमें वो माल नहीं चाहिए, हमें पैगंबर वाला तरीका चाहिए बस। तो अगर तरीके हमारे अंदर हो तो हम कामयाब हैं, अगरचे हमारे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, तरीके भी है, पैसे भी है, अच्छी बात है, कौन इनकार करता है। मुल्क भी है, तरीके भी है, अच्छी बात है। सबको दुनिया के एतबार से और उसके तरीके हैं, तो ये बात नहीं है कि चूंकि पैसा है तो नाकाम हो जाएगा, नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाबी के जामिन हैं। अगरचे क्या हो पैसा, देखो सिर्फ समझाने के लिए, शायद ये बात पूरी न उतरे, कि अगर अल्लाह चाहे तो पूरी मखलूक न चाहे तो होगा। इस तरह अगर पैगंबर वाले तरीके हो और दुनिया में से कुछ भी न हो तो काम बनेगा, ख्वाह अल्लाह कुछ दे या न दे, जो भी, लेकिन काम बनेगा। और अगर पैगंबर वाले तरीके कुर्बान हो गए और पैसा आ गया तो हम नाकाम हो जाएंगे। तो गोया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों में दोनों जहानों के कामयाबी का यकीन अंदर उतर जाए और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को छोड़कर जिंदगी गुजारने में नाकामी है, अगरचे पैसा है, जमीनें हैं, जायदादें हैं। ये दो तीन बातें मैंने अर्ज की, जिसमें एक आखिरत की बात है, एक तौहीद की बात है और एक रिसालत की बात है। ये बुनियादें हैं, ये बुनियादें अंदर होती है, ये बाहर नहीं होती। बुनियादें जमीन के अंदर होती है, ये बुनियादें बदन के अंदर, दिल के अंदर होती है, ये बाहर नहीं होती। बाहर नमाज नजर आएगी, बाहर बंदे को उसका रोजा नजर आ जाएगा, मिसाल के तौर पर सेहरी कर रहा है, ये कर रहा है, बंदे को उसका ज़कात देना नजर आएगा, ये इस्लाम जाहिर का है। बंदे को हज करता हुआ नजर आएगा, लेकिन बुनियादें नजर नहीं आती। बुनियादें जमीन के अंदर होती है। इस तरह ये यकीन दिल के अंदर होता है, दिल के अंदर होता है। तो इसको बढ़ाने का रास्ता ही यही है कि बंदा अपने दिल के उतारने की नीयत से इसको कहे, और जो भी इस बात को कहे, जो भी इस बात को कहे। देखो, हम इस बात का इंतजार न करें कि कोई जमात में हमारे से ज्यादा इल्म वाला होगा तो हम उसकी बात सुनेंगे, अपने से कम वाले की बात नहीं सुनेंगे। जमात में कोई ज्यादा पुराना होगा तो हम उसकी बात सुनेंगे, और जो नया आदमी है उसकी बात हम नहीं सुनेंगे। क्यों? इसके पास क्या है ये, तो गोया हम अपने से ज्यादा इल्म वाले की बात सुनेंगे, अपने से ज्यादा पुराने की बात सुनेंगे, या अपने से ज्यादा अमल वाले की बात सुनेंगे। देखो, हर मुसलमान से बंदा फायदा उठा सकता है। क्यों? फायदा देने वाला ये न ये आलिम है, न ये पुराना है, न ये दीनदार आदमी है कि किसी को फायदा दे सके। ये असबाब है, ये जराए हैं। हिदायत देना अल्लाह का काम है। फायदा लेने का जरिया
वो अल्लाह ही बंदे को फायदा देता है। देखो एक ही जमात है, आप देख ले इस बात को, उस जमात का एक ही जिम्मेदार है, एक ही मस्जिद है, एक अमाल है, तालीम और वो ये सब काम। एक बंदा उसमें 3 दिन से चिल्ला कर लेता है, चिल्ले से 4 महीने कर लेता है, उसके लिए कोई और अमीर तो नहीं है, उसके लिए कोई और अमाल तो नहीं है। और एक बंदा चिल्ले के लिए निकला है, वो भी छोड़कर भाग जाता है। भागना तो ठीक नहीं, चला जाता है कि नहीं जी मेरा ये हाल है, मेरा ये हाल है। उसके लिए कोई और मस्जिद तो नहीं है, कोई और तरीकेकार तो नहीं है, वही बंदा है। अगर बंदा एहतमाम के साथ लगे, तरतीब के साथ जुड़े, ये नेमत का शुक्र अदा करे, अल्लाह नेमत और बढ़ा देगा। तो फायदा देने वाला कौन है? इसलिए हर मुसलमान की बात सुने, अपने को मोहताज और जरूरतमंद समझकर। गश्तों में जाए तो जब बात करे अपने को मोहताज समझे, उसको मोहताज न समझे। मैं मोहताज हूं, मैं इसके लिए आया हूं, ये तो अपने घर पर है, ठीक है, उसकी भी जरूरत है, उसकी भी हाजत है, लेकिन मेरी जरूरत तो ज्यादा है। मैंने तो इसके लिए अपना घर छोड़कर आया हूं, मैं भी बच्चों को छोड़कर आया हूं, मैं कारोबार छोड़कर आया हूं, और ये तो भी अपने घर में बैठा हुआ है। इसलिए मेरी हाजत है, मेरी जरूरत है, मैं इस बात का मोहताज हूं। और दूसरी बात यह है कि कोई भी बात करे, कोई भी मसलन खुसूसी गश्त है, अब बाज वक्त एक नया साथी बात करता है, साथ पुराना है, या एक अनपढ़ साथी बात करता है, साथ आलिम है, तो देखो ये बात अल्लाह की करता है, अपना नहीं करता। अपनी बात कोई भी करे, हमने क्या सुनना है उसका। यानी अगर एक बंदा ये बात कहता है कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता, तो ये किसकी बात है? अल्लाह की बात है, अल्लाह के रसूल की बात है, अल्लाह की बात है, अल्लाह के रसूल की बात है। एक बंदा कहता है कि मरने के बाद अल्लाह के सामने पेश होना है, हिसाब किताब है, दुनिया की जिंदगी आरजी है। कितने आयतों का खुलासा उसने बता दिया, कितने हदीसों का निचोड़ उसने क्या है उसने बता दिया। एक बंदा कहता है कि यार अमल से जिंदगी बनती है, अमल को कुर्बान करके चीजों को जमा करने से जिंदगी नहीं बनती। तो ये तो पूरे कुरान और हदीस का खुलासा बता रहा है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि बंदा अरबी इबारत पढ़े, कि बंदा अरबी इबारत पढ़े, ये नहीं है जरूरी कि जरूर वो आयत पढ़े और तर्जमा करे, हदीस पढ़े और तर्जमा करे, नहीं। बात कुरान और हदीस की होनी चाहिए, बात कुरान और हदीस की होनी चाहिए, सही बात हो बस। तो अगर एक आम आदमी बात कर रहा है और ये तो बंदे के अंदर उजब है, खुदा न खास्ता अगर अंदर ये बात पैदा हो गई कि मैं इसकी बात सुनूंगा, मैं तो इससे ज्यादा इल्म वाला हूं, मैं तो इससे ज्यादा पढ़ाना हूं, मैं तो इससे ज्यादा समझदार हूं, तो भाई हम तो अल्लाह की बात का मोहताज है। इसलिए कोई भी बात करे उस गश्त में तो हम उनकी बात को तवज्जो और ध्यान के साथ सुने। कोई भी बयान करे, बात करता है तो हम अपने को मोहताज समझकर उसकी बात सुने। तरगीब गश्त है, हम अपने आप को मोहताज समझकर उसकी बात सुने। बैठकर बात है तो अपने आप को मोहताज समझकर उसकी बात सुने। इस तरह खुसूसी गश्तों में है तो उसमें भी हम अपने आप को, अल्लाह पाक तालिब को देता है, अल्लाह पाक जो अपने को मोहताज समझेगा बोलते वक्त, सुनते वक्त, हर अमल के वक्त, तो महरूम नहीं होगा। और तालिब ला यहरम, तालिब महरूम नहीं होता। तो हम इसकी बात हम करें ताकि हमारे दिल के अंदर उतर जाए। तो एक तरफ हमारी दावत इस बात की है, दूसरी बात यह है कि हमारी दावत इबादत की है। देखो इबादत और अखलाक, इन दोनों का बनना ईमान के बाद पहले दर्जे में है, बाकी दीन उसके साथ है। तो इबादत में भाई वो रोशनी जरा नीचे कर ले यार, इसको अगर तस्वीर ले रहा है तो मैंने पहले अर्ज कर लिया कि न ले यार, तुम्हारी मिन्नत समाजत है, किसने ली हो उसको मिटाना है। तो मैं अर्ज कर रहा था हमने आबिद बनना है, जैसे दाई बनना है। तो सिर्फ बंदा कहते दाई हूं, नहीं, दाई भी हूं, आबिद भी हूं। क्या हूं? आबिद भी हूं।
تو इबादत को अच्छे से अच्छा बनाने की तरफ, बढ़िया से बढ़िया बनाने की तरफ हम लोगों को बुलाए। उसमें नमाज ऐसी इबादत है कि अगर एक बंदा नमाजी बन जाए ना, लेकिन जिस तरह नमाज पढ़नी चाहिए, तो ये रोजा भी रखेगा, ज़कात भी देगा, हज भी करेगा। उसके लिए अलग मेहनत की जरूरत नहीं है। यानी नमाजी बन गया तो रोजादार भी बन जाएगा, ज़कात भी देगा, हज भी, लेकिन बशर्ते कि सही नमाजी बन जाए। अच्छा, ये नमाज ऐसी इबादत है कि अगर कोई भी उज़र नहीं है, बंदा दुकान पर है, जमीन पर है, कोई भी जितने ऊपर दर्जे के उसकी मशगूलियत है, कोई भी हो, लेकिन उसका नमाजी बनना जरूरी है। इबादत, तो हमारी बात में इबादत की बात हो। किसकी बात हो? इबादत की बात हो कि अपने इबादत को अच्छे से अच्छा बनाना। उसका तरीका क्या है कि हम उसकी फजाइल सुनाएंगे, रगबत देंगे, और न पढ़ने पर वईद भी मुख्तसरन हर जगह नहीं। तो जब हम नमाज की तरफ बुलाएंगे, दावत देंगे, और नमाज पर जिंदगी बनने के वादे हैं, बगैर दुकानों के, बगैर जमीनों के। अगर नमाज के लिए बंदा दुकान छोड़कर आ जाता है तो ये बात है कि काम खराब हो जाएगा। वादा है कि जिंदगी बनेगी, लेकिन अगर नमाज को छोड़ देगा तो जिंदगी बिगड़ेगी। अगरचे दुकान एक के बजाय 2 हो और 4 और 10 15 कारखाने हो गए, लेकिन जिंदगी नहीं बनेगी, जिंदगी नहीं बनेगी। हमारी बात इसी के अंदर हो, इसी की तरफ बुलाना और खुद अपनी नमाजों पर मेहनत करना। जैसे मैंने पहले यकीन की बात की कि दूसरे की बात को सुनना। नमाजों पर मेहनत इस माने में कि हम मस्जिद में है, जब अजान का वक्त हो जाए हम उससे पहले अपने आप को तैयारी का आदी बना दें। ये बात नहीं कि मोहल्ले वाले भी आ रहे हैं, नमाज से पहले 5-7 मिनट पहले वो आ जाते हैं, वो भी लेन में लगे हुए हैं, और हम मस्जिद में हैं और हम भी जल्दी जल्दी फिर कहते हैं अभी वुजू करना है। नहीं, हम नमाज का एहतमाम करें कि वुजू जो भी उसका तहारत का एहतमाम करे, और अल्लाह तौफीक दे फरीज़ा से पहले सुन्नतों का एहतमाम करे, नवाफिल का एहतमाम करे, और अपने नमाज को अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करें। अच्छे से अच्छे बनाने की उसकी कोशिश करें। अच्छे से अच्छा है कि सुन्नत के मुताबिक हो, इल्म के मुताबिक हो, यानी और साथ नफलों का एहतमाम हो, नवाफिल का, फराइज के साथ नवाफिल का एहतमाम हो। अगर हमारे जिम्मा फर्ज नमाजें हैं, बंदा है, भूल हो गई थी, कज़ा नमाजें जिम्मा है, तो अपनी कज़ा नमाजें साथ साथ पढ़ने की तरतीब बना दे। आहिस्ता 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 इंशाअल्लाह एक दिन आ जाएगा कि वो पूरे हो जाएंगी, लेकिन उस काम कोशिश करें। इसके साथ है बंदे के दीनदार बनने के लिए दूसरों को नफा पहुंचाना, अखलाक जिसको कहा जाता है। अखलाक के अखलाक में कि हमारी जमात के साथी है, मसलन हमारे जमात का जिम्मेदार है, हमारे जमात में कोई आलिम है, हमारे जमात में पुराना साथी है, हमारे जमात में अपने इलाके का कोई वडेरा है, कोई भी उसको, तो हम और आम साथी हैं, हमें सीखना यह है कि हम दूसरों को नफा और उसको उनके मंजिल पर रखे, दर्जे पर रखे। तो आलिम का उसके इल्म की वजह से हम एहतराम करें कि अल्लाह ने उसको इल्म से नवाजा है, उसके साथ मोहब्बत करें। जब हम इल्म की वजह से उसका एहतराम करेंगे, मोहब्बत करेंगे, अल्लाह हमें इल्म देगा, ख्वाह उसके जरिए से दे या किसी और जरिए से दे। एक बंदा है, उसमें अल्लाह ने, वो जिम्मेदार है, तो हम कमी को न देखें। हम इस इंतजार में हो कि सबसे कमियां दूर हो जाएंगे फिर हम साथ चलेंगे, और वो हमारे इंतजार में हो, भाई हम बहुत एक दूर हो चुके हैं दीन से। इसलिए हमारी दीनदारी ये है कि दूसरे के कमी को न देखे, अपने कमियों को देखे लेकिन दूसरे की कमियों को न देखे। जिम्मेदार है, उसकी इताअत करे, उसकी बात माने, वो बगैर मशवरे के हमें कह रहा है, लेकिन हम उसकी क्या बात, इससे हम बनेंगे, इससे हम इसको देखें, छोटे उम्र का है,
یہ تو بابا ہے بہت بڑے عمر، اس کا بات ماننا آسان ہے، یہ تو عالم نہیں ہے، یہ بھائی اس حد تک بندہ بات رکھنے کی اپنے آپ کو عادی بنانے کی کوشش کرے کہ اگر شریعت کے خلاف خدا نخواستہ کوئی کام کا کہہ رہا ہے جو حرام ہے، جو ناجائز ہے، تو اس کی بات ہم نے نہیں ماننی ہے۔ لیکن وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہے گا کہ یار اس مسجد میں بھی ٹھہرنا ہے، 2 دن ٹھہرے، 3 دن ٹھہرے، آپ بیان کر لے، آپ تعلیم کر لے، آپ خدمت میں ہو جائے، آپ یہ کام کر لے، آپ یہ کام کر لے، یعنی وہی وہ تو بھی خود بننے کے لیے آیا ہے، وہ کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہے، معالج تو نہیں ہے جیسے اسپتالوں میں ہوتا ہے کہ ایک تو ڈاکٹر ہے اور دوسرا بیمار ہے، تو یہ تو نہیں کہ امیر صاحب ماشاءاللہ بنا ہوا ہے اور دوسرے اس کے ہاتھ پر ابھی بننا چاہتے ہیں۔ یا ہمارے ہاں اصلاح کی شکل یہی ہے کہ اس مبارک راستے میں ہر ایک ان اعمال کا اہتمام کرتے ہوئے آگے بڑھے، تو اس کا خیال رکھے، اس کا کیا ہے، اس کی اطاعت کرے، وہ اس بات کی کوشش کرے کہ ساتھیوں سے ان کے استعداد کے مطابق کام لے، ہر ایک کو کام والے بنانے کی کوشش کرے، کام دے، ان کو جتنا کر لے اس پر حوصلہ بڑھائے، جو کمی ہو اس پر ٹوکنا نہیں ہوتا، سختی سے کوئی کام نہیں ہوتا، نرمی سے بہت سارا کام ہو جاتا ہے، اچھے اخلاق سے بندے کا دل لیا جاتا ہے، وہ سخت سے سخت کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے سیکھنے کی چیز ہے، کوئی کام و مشورے کے متعلق اس میں مشورہ کرے، بغیر مشورے کے احکامات نہ دے، لیکن مامور یہ نہ کہے کہ مشورے کے بغیر کیوں کہہ رہے ہو، اس کے بندہ تو یہ ہے کہ اپنے ذمہ دار کی کیا کرے، اپنے ذمہ دار کی بات مانے۔ اس طرح ہمارے جماعت میں ایک نازک آدمی ہے، بیچارے نے کبھی نہ کپڑے دھوئے ہیں، نہ کھانا پکایا ہے، نہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کے ساتھ جی لگے یہ نہیں ہے، اس کی طرف طبیعت چلے یہ بنیادیں نہیں ہے، اللہ کے راستے میں ہے۔ خاص کر دیکھو طبیعتیں بعض وقت کسی کی طرف چلتی ہے، کسی کی طرف نہیں چلتی، جماعتوں میں ہم سب مل جل جس طرف طبیعت چلتی ہے اس کے ساتھ گشت میں جانا آسان ہے، کہتے ہیں ہاں میں بھی ساتھ چلے جاؤں گا، اس کے ساتھ خدمت میں جوڑی بن جائے وہ بھی آسان ہے، اس کے قریب بستر لگانا بھی آسان ہے، وہ بیمار ہو جائے تو اس کی خدمت کرنا بھی آسان ہے، کیوں؟ تعلق والا ہے، میری طبیعت اس کے، اور جس کی طرف طبیعت نہیں چلتی اس کی کسی خاص وجہ سے، کیونکہ ہم سب محتاج ہیں اور ہم سب بننے کے لیے آئے ہیں، تو اس کے ساتھ کھانے پر بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، کہتے یار یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، اچھا اس کے ساتھ آپ گشت میں جاؤ تو طبیعت پر ذرا اس کے ساتھ یار پتہ نہیں کیا ہوگا، اس کی طبیعت تو سخت ہے، اس کی طبیعت تو یہ ہے، یہ تو یوں بات کرتا ہے، یہ تو یوں بات کرتا ہے۔ اللہ کے لیے بندہ کام کرنا سیکھے تو جس کے ساتھ کوئی نہ بیٹھے بندہ وہاں بیٹھنا سیکھے، جس کے ساتھ کوئی نہیں چلے بندہ ان کے ساتھ چلنا سیکھے، جس کی طرف کوئی بھی نہ دیکھے بندہ اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے آخرت کے بنانے کے لیے اس کے ساتھ جڑنا سیکھے۔ یہ بہت جلدی بننے کا راستہ ہے، بہت جلدی بننے کا راستہ ہے، اس لیے اس کا ہم خیال رکھیں۔ تو لیکن ایک نازک آدمی ہے، اب اس کے ہم نے خدمت کی، اس بیچارے کپڑے وہ ہم نے دھو دیے، کوئی اور مسئلہ وہ جلدی، لیکن نہ اپنے ساتھ جوڑنا ہے اس خدمت کی وجہ سے کہ کل دوسرے تشکیل میں کہے جی میں نے بھی آپ ہی کے ساتھ جانا ہے، اور نہ میں نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ ایسا جوڑنا ہے کہ اس کے بغیر تو میں چل ہی نہیں سکتا ہوں۔ اس طرح دونوں کا اللہ کے ساتھ جڑنا ضروری ہے، یہ تب ہوگا کہ جب اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، اس لیے اس کا خدمت کی، اس کا خیال رکھا اور اس کا ایک قسم کا دل رکھا، وہ انشاءاللہ چلے سے 3 چلے کر دے گا، آگے بڑھے گا، پھر اوروں کو سنبھالے گا، پھر اوروں کو سنبھالے گا۔ ایک محلے میں خواص ہے، ہمارے ساتھ گیا ہوا ہے جماعت میں، اب تو ہم گشت میں کہتے ہیں کہ جو محلے میں جو خواص ہیں تو ان سے ملنے جائے، علماء سے ملنے جائے، دعا کی درخواست کریں، تو جو خود جماعت میں جو عالم ہے ہمارے ساتھ، تو اس کے ساتھ یہ معاملہ تب ہم کریں گے جب ہم اس کے محلے میں گشت میں جائیں گے۔ بھائی ایک موقع اللہ نے دیا ہے تو اس کا ہم احترام کریں، اس کی بات سنیں، اس سے استفادہ حاصل کریں۔ یا مثلا جماعت میں کوئی اپنے علاقے کا کوئی خواص بیچارہ
इतने ज्यादा मुशक्कतों का आदी नहीं है, हम उसका एहतराम करें, उसका दिल रखें, अंज़िलुन्नास मनाज़िलहुम, उसको आसानियां दें ताकि वो सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। इसलिए बहुत खतरे की बातें हैं ये। बाज वक़्त किसी मालदार की खिदमत बंदा कर लेता है और किसी ओहदे वाले की खिदमत कर लेता है और उसका दिल जुड़ जाता है, तो फिर उसके बाद अपनी जरूरत रखता है कि मेरा उसके साथ ताल्लुक है, मेरा उसके साथ चिल्ला लगा है, अब मेरा फिलहाल मसला है दफ्तर में, अब उसके सामने मैं रखूंगा। वो भी कहता है यार इसने बहुत बड़ी खिदमत की, उसका ये काम तो करो। तो हमने अपने काम का नफा दुनिया में किसी से नहीं लेना है, हमने अपने काम का नफा अल्लाह ही से लेना है। इसलिए अगर किसी को कुछ सिखाया, सूरह फातिहा सिखाया, गश के आदाब सिखा दिए, तालीम के आदाब सिखा दिए, उस पर मेहनत की, अब मैं उसे क्या कहूं, ये मेरा बिस्तर जरा उठाकर उधर रख लेना, ये मेरे एक दो जोड़े कपड़े भी धो लेना, ये मेरा फलान काम करके भी देना। क्यों? इसलिए कि मैंने इसको, तो गोया मैं अपने इस अमल का सवाब इधर ले रहा हूं। वो अलग बात है कि दूसरे को ख्याल रखना चाहिए, दूसरे को क्या है, बड़े उम्र का है, आलिम है और कोई महता, उसके जल्दी जल्दी बंदा काम करे अल्लाह की रजा के लिए। लेकिन मैं ये कहूं कि मैंने चूंकि इस पर मेहनत की है और मैंने उसको सिखाया, मैंने उसको यूं कर लिया, तो नहीं है, नहीं। इसलिए हम इन चीजों का ख्याल रखें, इससे हमारे आपस में जोड़ होगा, मोहब्बतें बढ़ेंगी। पीठ पीछे की शैतान तो कमियां दिखलाता है, क्या दिखलाता है? शैतान खूबियां नहीं दिखलाता, दिखलाता है अपनी खूबी। क्या? जैसे उसने अपने खूबी को देखकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खूबी का इनकार कर दिया, हालांकि उसकी खूबी अल्लाह ने बतला दी, और इसने अपने खूबी को देखकर अपने ज़ौम में और कहा ना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बढ़िया हूं, मैं इसकी तरफ झुकूंगा, और अल्लाह की बात का इनकार कर दिया। तो शैतान ये कहता है कि मेरी तरह बन जाए। किस तरह? कि ये अपने खूबी को देखे, मैं इसकी बात सुनूंगा, मैं इसकी बात, ये कौन है, मैं फलान हूं। तो शैतानियत से निकलना है, नफ्सानियत से निकलना, इंसानियत में आना है। इंसानियत और शैतानियत में तजाद है। ये जितने भी शक्ल में इंसान नजर आ रहे हैं और मुसलमान नहीं है, और शक्ल में क्या नजर आ रहे हैं? वो नजर आ रहे इंसान, हकीकत में ये नहीं है, हकीकत में तो वही शैतान है इंसान की शक्ल में, या जानवर है इंसान की शक्ल में। क्यों? कि जहन्नम में अल्लाह उन शैतानों को और शैतानों के पीछे चलने वालों को अल्लाह डालेगा, इंसानों को नहीं डालेगा। ये वो इंसान होंगे जो शक्ल में इंसान है और अंदर शैतान है। शैतान की बात मानी, नफ्स की बात मानी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात नहीं मानी, अल्लाह के मुकाबले में आया। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने इन चीजों का ख्याल रखना है। अल्लाह हमें तौफीक दे, इससे हमारे आपस में जोड़ भी बढ़ेगा, मोहब्बतें भी होंगी, हम बनेंगे भी, और इसके साथ हम अपने जिक्र का एहतमाम करें कि वक्त पर हो, कुरान पाक की तिलावत का। इससे हमारे नमाजों के अंदर जान पड़ेगी, हमारे नमाजों के अंदर जान पड़े। इन अमाल पर जो मिल रहा है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है, और वो इल्म है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, आखिरत और दुनिया से बेरगबती। तो ये जो फज़ाइल अमाल है और फज़ाइल सदक़ात है, तो फज़ाइल अमाल में उन बुनियादी अमालों के फजीलतें बताई जाती है जिससे बंदा दीनदार बनता है। फज़ाइल सदक़ात में भी, और उसमें मरने के बाद जिंदगी, आखिरत के तस्करे, दुनिया से बेरगबती। इसलिए इस काम में एहतमाम करें कि उसमें खुद भी बैठे और तालीम के दौरान औरों को भी लाने की कोशिश करें। इतना कुरान सीखना हर मुसलमान पर फर्ज ऐन है कि जिससे उसकी नमाज दुरुस्त हो जाए, जिसकी नमाज दुरुस्त हो। इसलिए हमारे तालीम का हिस्सा है कि इस तरह जोड़ियां बना दी जाए कि हर एक कम से कम सूरह फातिहा और उसके साथ कुछ सूरतें तो दुरुस्त कर ले। इसलिए उसमें सुनना सुनाना नहीं होता, सीखना सिखाना होता है। एक लफ्ज पर अगर आधा घंटा लग जाए और वो ठीक हो गया और फिर वो पूरी जिंदगी वो ठीक पड़ता है, तो उसको सवाब भी मिलेगा और उसका सवाब उसको मिलेगा जिसने उस पर मेहनत की है। इसलिए हम इसको ठीक करने की कोशिश करें। 6 नंबरों को अपने अंदर पैदा करने के लिए उसका मुज़ाकरा होता है, नया भी बयान करता है और पुराना भी
بیان کرتا ہے اپنے کو محتاج اور ضرورت مند سمجھ کر. تو ہم نے اسی کے تذکرے کرنی ہے اور اللہ کے راستے میں نکلنا, اللہ کے لیے کام کرنا. تو 6 نمبر کے فضائل ہم نے سنانا ہے. مسائل بیان کرنا ہمارا کام نہیں ہے. یہ جائز ہے, ناجائز ہے, یہ غلط ہے, صحیح ہے, یہ حق ہے, یہ باطل ہے. ہم اپنے حدود کے اندر رہیں, خواہ کوئی عالم ہی کیوں نہ ہو. مسئلے علماء سے پوچھے جاتے ہیں. یا نکلنے کے زمانے میں جو ہمارے سیکھنے کی چیزیں, وضو سیکھے, نماز سیکھے, اپنے سونے کے آداب سیکھے, اور اس طرح مسجد میں رہنے کے آداب سیکھے, یا اس طرح مثلا کھانے پینے کے آداب سیکھے. نکلنے کے زمانے میں جس علم کی ہماری ضرورت ہے وہ ہم ایک دوسرے سے سیکھیں, تاکہ ہمارے اندر یہ داعیہ پیدا ہو جائے کہ ہم واپس جا کر اپنے گھر میں بھی, ہماری پوری جماعت ہے, یہ بہت سارا مجمع واپس جا رہا ہے, تو ان کا نکلنے کا ارادہ ہے, لیکن ابھی جا کر تیاری کریں گے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تبلیغ والا کام بندہ نکل کر سکتا ہے, مقام پر نہیں کر سکتا. نہیں, یہ مقام پر بھی کرنے کا ہے, نکلنے کے زمانے میں بھی کرنے کا ہے. تو جیسے مقام پر اپنے مسجد کی جماعت کے ساتھ کم از کم مشورے میں شرکت کرے, روزانہ اپنے محلے میں جو کچھ ملاقاتیں کرے, مقام پر عمومی گشتیں اس میں شرکت کرے, بیرونی گشتیں اس میں شرکت کرے. مہینے میں صرف 3 دن دینے کا اپنے آپ کو پابند بنا دے, اور اپنے گھر میں یہاں سے جو ہم 3 دن لگا کر جا رہے ہیں. دیکھو, ایک بندہ کسی بازار میں جاتا ہے, منڈی میں جاتا ہے, تو اپنے ساتھ کچھ گھروں کو لے کر جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں کہ یار یہ چیز آپ کے لیے لے کر آیا ہوں, بچوں کے لیے, بیوی کے لیے, رشتہ داروں کے لیے تحفے لے کر آتے ہیں. ہم تو اللہ کے راستے میں آئے ہیں, اب ہم واپس مثلا گھروں کو جا رہے ہیں, تو اپنا کیا چیز لے کر جا رہے ہیں. تو یہ 3 دن معمولی نہیں ہے. دیکھو, اللہ پاک بعض بندوں کو ایک بات سے وہ ہدایت دے دیتا ہے جو دوسرے سال لگے رہتے ہیں, اور وہ بات نہیں بنتی. اتنا توبہ کی توفیق دے دیتا ہے, ایک دن آ کر وہ کہتے ہیں بس ختم ہو گئی بات, اللہ کے ساتھ جو میری دوری تھی بس ختم معاملہ. اب اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بڑھانا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناراض کیا ہے, اب اور آگے اس کو ناراض نہیں کرنا ہے. یہ دلوں میں اللہ باتیں ڈالتا ہے. اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہے, اپنے گھر میں دینی ماحول بنانا ہے, اپنے بہن بھائیوں کو صحیح رخ پر لانا ہے. یہ داعیہ اللہ دے دیتا ہے توفیق, اور پھر اس پر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق دے دیتا ہے. تو اپنے گھروں کو کیا لے کر جاتا ہے؟ اجتماع میں گئے تھے, کیا لے کر آئے؟ یہ تو نہیں ہے کہ یہاں بازار ہے جی, وہاں بہت اچھی ٹوپیاں تھی میں لے کر آیا, اچھے کپڑے تھے تو اچھے کپڑے لینے گئے تھے, دوسری جگہ بہت اچھے کپڑے مل جائے وہاں جاتے ہیں نا. اسے چیزیں خریدنا نہیں ہے اللہ کے راستے میں, اور چیزیں خرید کر گھروں میں نہیں لے کر جانا ہے. ہم نے کیا لے کر آیا ہو یار؟ پہلے نماز کا خیال نہیں رکھتا تھا, اب نماز لے کر آیا ہوں, اب تلاوت لے کر آیا ہوں, اب ذکر لے کر آیا ہوں, اب گھر میں تعلیم لے کر آیا ہوں, اب حیا والی زندگی لے کر آیا ہوں, اب اپنے بچوں پر پیار اور محبت کے ساتھ کام کرنے کا داعیہ لے کر آیا ہوں. اب ہماری جماعت میں, گھر میں جماعت ٹھہرے گی, ہمارے گھروں میں دینی ماحول ہوگا, محلے میں گشت کروں گا, ملاقاتیں کروں گا, آنے والی جماعتوں کو نصرت کروں گا. کیا لے کر آیا ہوں؟ دین لے کر آیا ہوں. کیا لے کر آیا ہوں؟ دین کی محنت لے کر آیا ہوں. دینے والا رحیم کریم ہے, کسی کو سیکنڈوں میں دے. اللہ کا کیا نظم ہے. فرعون کے مقابلے میں جتنے ساحر آئے تھے, اور فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں, اور فرعون سے کہا کہ ہمیں کیا ملے گا اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں میدان ہم نے جیت لیا, تو ہمیں کہتے تم میرے خواص میں ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. جب حق سامنے آیا کہ واقعی ہم تو اس لین کے ماہر ہیں, جادو یہ نہیں ہے, جادو کو ہم جانتے ہیں, جادو کو یہ تو واقعی معجزہ ہے, حق ہے. اس وقت حالانکہ اس میں نہ گھنٹے لگے تھے نہ دن لگے تھے, اس وقت اللہ نے اتنا پکا ایمان دے دیا کہ اس نے اس وقت جہرن اعلان کر دیا کہ ہم نے فرعون کو رب نہیں مان رہے, ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر کہ رب پر ایمان لایا. اب فرعون دھمکی دے رہا ہے کہ میں تمہیں یوں کروں گا, تو انہوں نے کہا فقد ما انت قال, جو تمہارے سے ہو سکتا ہے کر گزرو, ہم نے تو اللہ پر ایمان لایا ہے. تھوڑے سے وقت میں اللہ نے کتنی بڑی ضرورت دی. یہ نہیں کس میں سال لگتے ہیں, وہ تو نظام ہے. کسی وقت دل میں بات اتر گئی
کسی وقت بات دیکھو، ایک تخم ہوتا ہے، ایک بیج ہوتا ہے، کسی وقت زمین کے اندر اس کو ڈالا، صحیح طریقے سے ڈالا، زمین کے اندر استعداد ہے، اس سے آگے درخت بنے گی. بندے بننے میں وقت لگتا ہے لیکن استعداد پیدا ہو گئی. جب بندہ اس ماحول میں آیا، اب آگے یہ دیندار بنے گا، بنتے بنتے بنے گا، ذکر کرتے کرتے ذاکر بنے گا، تعلیم کرتے کرتے علم والا بنے گا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے آتے اچھے اخلاق والا بنے گا، اپنے ماں باپ کا تابعدار بنے گا، اپنے ادارے میں جو اپنا ذمہ دار ہے اس کی بات مانے گا، غلط سے اپنے آپ کو بچائے گا. غلط کہنے سے، غلط بولنے سے کروڑوں آ رہا ہے تو کروڑوں کو لات مار سکے گا اگر اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے اور آخرت سامنے ہو جائے. یہ تبدیلیاں اس مبارک راستے میں اللہ دے ہی دیتا ہے. اس لیے ہم اس کی کوشش کریں کہ ایک طرف نا تو ہم احکامات بیان نہ کریں، یہ جائز اور یہ کیا، امت کی امراض بیان نہ کریں. امت کی امراض کمیاں ہیں. دیکھو ڈاکٹر علاج دیتا ہے، حکیم کیا دیتا ہے؟ وہ جب اندر گولی کھا لیتا ہے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ ہے وہ ہے یہ وہ. دیکھو امراض تو بیان کرنے میں اگر بندہ شروع ہو جائے تو پورا دن لگا رہے گا. کمزوریاں ہیں، ہم علاج کی بات کریں. امت کے اندر یہ ہے یہ ہے وہ باتیں. دیکھو یہ تبلیغ کا کام کوئی جماعت کا کام نہیں ہے. نماز پڑھنا جماعت کا کام ہے. نماز وہ تاجر بھی پڑھے گا، ذکر کرنا جماعت کا کام ہے. اللہ پر ایمان لا، اس لیے اس میں کوئی سیاسی باتیں نہیں ہوتی. یہاں ہر ایک آئے گا کیونکہ کوئی جماعت نہیں ہے، یہ اپنے آخرت کے بننے کا میدان ہے. اختلافی بات یہاں نہیں ہوتی. یہاں ہر ایک آئے گا، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ آخرت بنانا چاہیے. اس میں کیا اختلاف ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کام کر. اپنے نماز کو بڑھیا سے بڑھیا بناؤ، اپنے اخلاق کو بڑھیا سے بڑھیا بناؤ، ذاکر بنو، رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگنے والا بنو، اور اپنے جس شعبے میں ہو اس میں علماء سے علم حاصل کر کے اس میں کیا اختلاف ہے؟ اس لیے یہاں ہر ایک نظر آئے گا. یہاں یہ امت کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ یہ ایک جماعت کا کام نہیں ہے. یہ تو نام پڑ گیا تبلیغی جماعت. تبلیغی جماعت یعنی نماز کی جماعت، ذکر کی جماعت. ذکر ہر مسلمان کا کام ہے، دعوت دینا ہر مسلمان کا کام ہے، دین پھیلانا اور اس کے لیے جان اور مال قربان کرنا یہ ہر ایک مسلمان کا کام ہے. ہم اس کو ایک جماعت کے ساتھ محسوس نہ کریں. اس لیے ہماری باتوں میں ایسا نہ ہو کہ جس سے اختلافی باتیں نہیں ہوتی، اس میں سیاسی باتیں نہیں ہوتی، اس میں صرف اعمال کی باتیں ہوتی ہے. ہر ایک اس میں آئے گا. ہم ان چیزوں کا واقعات ہم بیان کریں تو صرف صحابہ کرام اور انبیاء کا، نیچے نہ آئے کس سے کہانیاں اپنا یا اوروں کا، کارگزاریاں اپنی یا اوروں کا. ہم نے اوروں کو اپنے کارگزاریوں سے متاثر نہیں کرنا ہے. وہ جی میں تو یوں کیا تھا، میں تو یوں کیا تھا، میں نے تو یوں کیا تھا. بھائی میرے کیا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اور اللہ نے کتنی کارگزاریاں سنائی ہے. فرعون اور قارون کے پاس مال اور ملک تھا، موسیٰ علیہ السلام کی اتباع نہیں کی، میں نے کیسے ناکام کر دیا. اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بنی اسرائیل، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں نے کیسے فرعون سے لے کر ان کے قدموں میں ڈالا. قوم سمود کے پاس سب کچھ تھا، دین نہیں تھا، میں نے کیسے ناکام کر لیا. یہ کارگزاریاں اور یہ جو کیا نام ہے کس سے ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے. جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے بتایا، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم جو نبیوں کے قصے تمہیں سناتے ہیں آپ کو، تو تم آپ کے دل کو بڑا کرنے کے لیے. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مارے پھرتے تھے، کوئی سنتا تھا کوئی نہیں سنتا تھا، کوئی دھمکیاں دیتا تھا کوئی. تو یہ واقعات سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور مضبوط ہو جاتا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے کام کرنے کے طریقے آتے تھے. اس لیے ہم انبیاء اور صحابہ کرام کے واقعات سے نیچے نہ آئے. بزرگوں کے قصے ہمارے لیے ہے ہمارے کتابوں میں، لیکن اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا دعوت دے کر لوگوں کو اپنے بزرگوں کا بناتے ہیں. اس میں تو دوسرا کہہ سکتا ہے تمہارے بھی بزرگ ہیں ہمارے بھی بزرگ ہیں، تم اپنے بزرگوں کے پیچھے چلو ہم اپنے بزرگوں کے پیچھے چلیں گے. لیکن یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا تمہارا بھی صحابہ ہے ہمارا بھی صحابہ ہے، تمہارے بھی انبیاء ہے ہمارے بھی انبیاء ہے. انبیاء سب کے ہیں،
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबका है, सहाबे कराम सबके हैं। इसलिए हमारी बातों में ये दावत की बात है, ये अल्लाह के रसूल की बात है। इसलिए इसका तो इतना वजन होता है कि किसी के अंदर यह दाइया नहीं होता कि मैं बीच में बयान करूं। जब और मौजूद है, और यह मतलब कि ये सब मौजूद है, मैं क्यों करूं? ये अंदर दाइया नहीं होता कि मेरी बात हो जाए, मेरे बयान। एक तो कि कोई बात नहीं उसके सर पर पड़ गया तो अलग बात है, लेकिन ये बहुत बड़ा वजन है कि मशवरे से तय हो जाए तो फिर भागना नहीं, मशवरे से तय हो जाए, भाई आप बयान कर ले, आप तरगीबी गश्त बयान कर ले, आप बैठकर बात कर ले। अगर खुदा न खास्ता ज़हन तबलीग से ये बना कि बयानात करने हैं, तो फिर अगर उमूमी गश्त का कह दिया जाए तो तबीयत में थोड़ा सा यार बयान ही ठीक है, और अगर बयान का हो जाए तो फिर ठीक है। अगर मेरे मौजूदगी में किसी और जो एक जमींदार आदमी है, एक ताजर आदमी है, एक दीन से दूर आदमी है, उसका तय हो जाए, यार मेरे होते हुए इसका, ये काम सबके बनने का है, इसलिए सबसे सब काम लेना है। ये नहीं है कि हमारे यहां कोई तखस्सुस है, डिग्री है कि तो बयान में वो बन गया, क्या कहते हैं उसको, 12 जो भी बन गया, स्पेशलिस्ट बन गया, अब इसको और किसी काम का नहीं कहा जाएगा। और ये हर वक्त खिदमत में, माशाअल्लाह इसने पकाना तबलीग में सीख लिया, वापस जाकर होटल खोल सकता है, और ये हर वक्त किसमें, और ये हर वक्त नहीं, सब काम सबसे करवाने हैं इस्तेदाद के मुताबिक, ताकि हर एक बंदा हर काम का बन जाए। ये बात कि बेचारा नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, इस काम का जिम्मेदार है। आज नहीं बन सकता है, करते करते बन जाएगा, अल्लाह इससे काम लेगा। इसलिए इस्तेदाद के मुताबिक काम लेना भी है, देना भी है। तो हम इन सब चीजों का अल्लाह से मांगते रहे, ख्याल रखें। तो अब दावत में भी इसमें लगना है, तालीम में भी उन आदाब के साथ बैठना है, और साथ साथ ये अपने अस्कार को भी पूरा करना है, और अपने इबादत में भी लगना है, और अपने साथियों की खिदमत, महल्ले की खिदमत, महल्ले की। अब मस्जिद है, हम रहते हैं मस्जिद में, तो हमारे जिम्मा है उसको पाक साफ रखें। उसमें हम इस तरह खाना पकाना, इस तरह आग जलाना, जो मस्जिद की भी बेअदबी है, और मस्जिद वाले आकर देखे, यार तबलीग वाले माशाअल्लाह आए थे, देखो ये क्या बनेगा, आइंदा जमात नहीं ठहरेगी हमारी मस्जिद में, इनको तरीके नहीं आते। या मसलन दरियों पर और उस पर खाना खिला दो, अगर अब चाय वहां गिर गई, खाना नमाजी आ गए, उन्होंने कहा क्या कहते जी वो जमात वाले आए थे माशाअल्लाह। या मसलन वुजू की जगह है, उसमें चावल पड़े हुए हैं, उसमें दाल है, उसमें कुछ है, अब क्या जी जमात वाले आए हैं, उन्होंने खिदमत की है तो दाल को उधर डाला और चावल को इधर ही डाला। नहीं भाई, हम ये दीन सीखना है, हमने ये सब दीन है। बंदा खाना भी सीखे और पकाना भी सीखे, इस तरीके से मस्जिद को साफ रखना भी सीखे। बैतुल खला है, वुजू है, हम अपनी सादत समझ उसको साफ रखें। इसमें कोई मशवरे की बात नहीं है कि भाई कौन करेगा। इज्तिमाई खिदमत तो मशवरे से होती है, ताकि इसमें सब लगे, उसमें जिसका भी तय हो जाए, वो सलखाना है उसको पाक साफ रख ले किसी से। ये बंदा अल्लाह की तौफीक से ये काम जो है वो कर सकते हैं, इसलिए हमारा इसका भी एहतमाम हो। बस कर ले आ रहा है, देख ले कहां तक आ रहे हैं। साथ साथ मेरे मोहतरम दोस्तों, हम उमूमी गश्त का एहतमाम करें। देखो तबलीग के काम में ये उमूमी गश्त, बाज़ वक़्त हमारे साथी कहते हैं दीन के काम में, वो अलग है, वहां तक अगर कोई ले जाना चाहे ले जा भी सकता है, लेकिन जो बताया जाता है तबलीग के काम में, उमूमी गश्त रीढ़ की हड्डी की तरह है। उमूमी गश्त में जाने को दिल नहीं करता, आम लोगों के पास जाने को दिल नहीं, कहते मैं तबलीग करता हूं, तो ये नहीं। सब नबी बेतलबों के पास गए हैं, हालांकि कितनी बड़ी शख्सियतें होती हैं, आम लोगों के पास गए, और आम लोगों के पास जाना अपना खुदा न खास्ता अपने कोई हद तक नहीं समझा, बल्कि इस तरह आम लोगों के पास चलकर जाना, आम लोग, और उनसे कलमे की बात करना,
اس کی بات کر سب نبیوں نے بنیادی بات کی ہے، باقی احکامات تفصیل سے بتائے ہیں، لیکن ان کی دعوت میں کلمے کی بات ہے۔ اس لیے ہماری بھی دعوت میں کیا ہو، کلمے کی بات ہو کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے میں ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ دیکھو ایمان نام ہے وعدوں کا، اس لیے مومنوں کو کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ ایمان والو کہ جو عہد کر چکے اس کو پورا کرو۔ حالانکہ اس ایمان کے اندر یہ بات آ بھی گئی کہ مومن ہے وہ کہ جو اس کا اور اللہ کے درمیان عہد ہے لا الہ الا اللہ کہنے سے، تو اس کو پورا کرنا کیا ہے؟ عہد یہ کہ میں تیرے احکامات کے مطابق زندگی گزاروں گا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزاروں گا۔ یہ تو بندے کا ہے، اور اللہ کی طرف سے کیا عہد ہے؟ جب تم یوں گزارو گے تو میں تجھے کامیاب کر دوں گا۔ اس لیے ہماری کامیابی کس میں؟ اس کلمے میں ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہمارا کام ہے۔ کام اس بات کے سمجھانے کے لیے اللہ نے ہر زمانے میں پیغمبروں کو بھیجا۔ کن کو بھیجا؟ پیغمبروں کے علاوہ کسی نے بھی یہ بات نہیں کی ہے پیغمبر سے، جس پیغمبر ہی نے کی ہے۔ ہر پیغمبر کو اس کلمے کا داعی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اور یہ بات جو انہوں نے کی ہے یہ مسجدوں میں نہیں کی، مسجد میں تو بعد میں لوگ آئے، مسجد میں تو بعد میں آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کام شروع کیا تو مسجد میں تو 360 بت تھے۔ یہ بازاروں میں کی ہے، یہ منڈیوں میں کی ہے، یہ لوگوں کے پاس جہاں لوگ ملے ہیں وہاں اللہ کے رضا کے لیے اپنی ذمہ داری سمجھ کر دوسروں کے خیر خواہی میں ان کے پاس چل کر گئے ہیں۔ ان کے پاس اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ لوگ اگر آئے میرے پاس تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو کیا۔ یہ تو طالب کا کام ہوتا ہے، طالب وہ ہوتا ہے جو پیچھے پیچھے پھرے۔ تو اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے پیچھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پھر گئے، وہ خود آتے تھے، مجلس میں بیٹھتے تھے، ان کے مجلس میں بیٹھنے کو اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ وہ تو رات کو سو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جاتے تو اپنا گھر چھوڑ کر آ جاتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس نہیں گئے کہ آپ کو تو میرے مسجد میں آنا چاہیے نا جی، ہم مجلس میں بیٹھنا چاہیے نا جی، سیکھنا چاہیے جی، یہ نہیں ہے۔ وہ طلب جب پیدا ہو جاتا ہے وہ خود آتا ہے، لیکن طلب پیدا کرنے سے پہلے والی محنت وہ نبیوں نے کی ہے۔ اب وہ کیا ہے کہ ان بے طلبوں کے پاس جا کر ان کو اللہ کی طرف بلانا، پیار محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ لا کر اللہ کے ساتھ جوڑنا، یہ سب نبیوں کا کام ہے۔ اس لیے ہمارا دل کرے عام لوگوں کے پاس جانا۔ اچھا، مشقتیں ہم نہ مانگے، مشقتیں مانگنا یہ بہادری کی بات ہوتی ہے۔ بعض صحابہ نے مانگی بھی ہے، وہ الگ نوعیت ہے ان کی بعض حالات میں، لیکن عمومی طور پر کیا ہے، مشقتیں نہ مانگے، آسانیاں مانگے۔ کیا مانگے؟ عافیت مانگے۔ لیکن اگر کسی کے پاس اس مبارک محنت کی برکت سے چلنے میں پہاڑوں کو بھی پار کرنا پڑے، سمندروں کو بھی پار کرنا پڑے، تو یہ ہماری سعادت ہے کہ ایک پہاڑ پر آدمی ہے، اس پر پہنچنے میں بہت مشقت ہے، بہت کیا ہے؟ مشقت ہے۔ اس کو برداشت کرنا، یا بھوک برداشت کرنا، پیاس برداشت کرنا، تھکاوٹ برداشت کرنا، اپنے طبیعت کے خلاف چیزیں برداشت کرنا، یا اپنے آرام کا وقت ہے آرام کو مؤخر کرنا، اپنے کھانے کو مؤخر کرنا، اور اپنی عزت کو کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میں اتنا بڑا آدمی ہوں، اور دیکھو یہ آدمی میرے سے بات کر رہا ہے۔ ہمارے علاقے کا ایک ڈاکٹر صاحب تھے، بہت معروف تھے، ایک تشکیل تو ان کی ہو گئی تھی اپنے علاقے میں، تو سب کہتے تھے جی 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 جی، جان پہچان تھا، تعلق تھا۔ دوسری تشکیل یہاں جب آئی تو ایک بستی میں ہوئی، تو مجھے بتانے لگا کہ تھے مولوی صاحب بڑے مشکل میں پھنس گیا تھا۔ میں نے کہا جی کیا بات تھی؟ کہتے گش میں گیا، ایک وہاں پشتوں میں کہتے نا نسڑی،
यानी वो कोई आदमी नहीं था, उसका क्या, उसने मुझे इतनी बातें सुनाई कि बीवों को छोड़कर आए हो, बच्चों को छोड़कर आए हो, तुम यूं हो, तुम यूं हो, हम अपने काम में लगे हुए हैं, और गालियां दी, बातें सुना दी। कहते मैंने पूरी जिंदगी में कभी, मेरे बाप ने मेरे से कभी सख्ती से बात नहीं की, मेरे अफसर ने नहीं की, इस बंदे ने तो मेरा दिल जलाया। और मैं दिल दिल में सोचता था कब इन सब के सामने तो मैं तेरा इलाज नहीं कर सकता, लेकिन इलाज करना जरूरी है, तेरा इलाज करना जरूरी है, तुझे ऑपरेशन करना है। कह रहे मैंने दिल में कहा कि अब जब वापस जाऊंगा इसी के पास मैं अकेला आऊंगा और उसकी खबर मैं लूंगा। ये नहीं सुनते हो तो ना सुनो, लेकिन बातें सुनाना और एक किस्म के इस तरह रवैया इख्तियार करना। कह रहे मैं अंदर बाहर खुड़ता था अलग। कहते अल्लाह ने इससे मेरे दिल पर एक सकीना उतारा जब मैं मस्जिद में आया कि तुम किसके रास्ते में हो, बात क्या करते हो, कि इस रास्ते में नबियों ने तबलीग, तो का वाक़ा सुनाया जाता है ना, तो इस रास्ते में नबियों ने तकलीफें उठाई, काफिर मुशरिकों के पास जाकर वो सुनाते थे। तो जिस रास्ते में सैयदुल अंबिया ने तकलीफें बर्दाश्त की काफिरों से, तो मेरा मुसलमान भाई है ना, समझ है, उसने मुझे कुछ सुना दिया, तो अब मेरी शान इतनी है कि मैं कहूं कि ये मुझे सुना दे, मेरा उसके साथ क्या वास्ता। अल्लाह के कहते मैं ठंडा हो गया। ये क्या हो गया? ठंडा हो गया। अल्लाह ने मुझे यानी बचा दिया शैतान और नफ्स के बुनियाद पर हाथ उठाने से। देखो अगर ऐसी कोई हाल आ जाए, हमारा मुसलमान भाई है ना, समझ है, हमने कितनों को निकाला है, हर एक अगर अपना कहानी पढ़े। ये तबलीग वाले जो यहां पर बैठे हुए हैं क्या मस्जिदों में थे और उनकी जमातें बनाकर भेज दी गई, या तैयार बैठे थे? नहीं, तो एक एक के पीछे पूरी दुनिया के लोगों की दुआएं हैं। खेत में था, दुकान में था, रास्ते पर कोई मिला, प्यार मोहब्बत से बात की कर आहिस्ता लेकर आया मस्जिद में फिर तालीम में बिठाया, कुछ खिलाया पिलाया और पता नहीं क्या कुछ जैसे नखरे होते हैं उसके नखरे बर्दाश्त किए खुद। आखिर अल्लाह ने उसके दिल को बदला और आज वो औरों के पीछे फिर रहा है। जिसके पास 3 दिन का वक्त नहीं था आज उसके पास साल का वक्त है, 7 महीने का वक्त है। जो कहते थे मेरा 50-100 रुपया मेरे लिए मुश्किल है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा कारोबार है, आज वो लाखों खर्च कर रहा है। ये कहां से आ रहा है? ये अल्लाह ही की तरफ से बरकतें हैं। इसलिए हम बर्दाश्त करें, क्या करें, और अपने साथियों का तो सबसे ज्यादा बर्दाश्त करें। जो अपने साथियों का बर्दाश्त करेगा 10-15 दिन 20 दिन चिल्ला, वो अपने घर में अपने बीवी का भी बर्दाश्त करेगा, अपने बच्चों का भी बर्दाश्त करेगा, अपने भाइयों का भी बर्दाश्त करेगा, क्योंकि वहां ज्यादा वक्त गुजारना होता है, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने साथ दोस्तों के साथ। हमने अगर कोई तबीयत के खिलाफ हाल आ जाए तो हमने क्या करना है? हमने बर्दाश्त करना है। उसमें हम तंग न हो, तब तश्कील वालों को अल्लाह हिदायत दे। क्या है? कहां भेजा? कोई बात तो सुनता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है, कोई बैठता ही नहीं है। फलान जगह बेचता तो वहां हम बसें भर कर ले आते, वहां से जो आप बसें भर कर ले आते, तो वहां किसी जमाने में बाज लोगों ने काम किया था। काम क्या? जिस वक्त कोई सुनता नहीं था, उनकी मेहनत को अल्लाह ने जरिया बना दिया और आज बसें भर कर जाती है, रेलें भर कर जाती है। ऐसे जगहों में जाना जहां कोई नहीं जाता, ऐसे बंदों के पास जाना जिससे मिलने कोई नहीं जाता, ऐसे मस्जिदों में जाना जिन मस्जिदों में कोई सहूलत का सामान नहीं जाहिर तौर पर, और जिन मस्जिदों में फकीर लोग रहते हैं, दीन के एतबार से भी फकीर है, दुनिया के एतबार से भी फकीर है। सबसे ज्यादा खतरे में है जो बंदा दीन से भी दूर हो, दुनिया भी उसके पास ना हो। तो यही हमारे मेहनत का मैदान है। दुनियादार हमारे नहीं है, ये नहीं कि हम उसका खुदा न खास्ता हो, लेकिन वो बाद में आते हैं, बड़े लोग बाद में आता है। जब जो वो हमारा मौलाना यूसुफ रहमुल्लाह से किसी ने कहा कि जो आवाम में फिरते हो, मुर्गी को पकड़ लो, मुर्गी को, तो चूजे खुद ब खुद आ जाएंगे। तो ये बड़े बड़ों को लो ना, तो ये आवाम खुद ब खुद आ जाएंगे, ये तो उनको देख के चलते हैं। तो मौलाना ने उनसे कहा कि
मुर्गी को पकड़ना कोई आसान काम है, लेकिन चूजा एक ले लो, दूसरा ले लो, तीसरा, वो मुर्गी भी आ जाएगी। देखो, सब लोगों ने आवाम पर मेहनत किया है। उमूमी माहौल अगर दीनदारी का होगा और उमूमी माहौल अगर अमाल का होगा तो दुनिया के एतबार से जो बड़े हैं अल्लाह उनके दिलों को भी फेरेगा। वरना माल की नहूसत इतनी होती है, अगर सही रुख पर न हो, और ओहदे की नहूसत इतनी होती है कि वो बंदे को नीचे आने नहीं देता। हालांकि उसके नीचे आना किसी एक बंदे की वजह से तो नहीं है, वो तो अल्लाह की वजह से नीचे आओ। अपनी बात तो नहीं कर रहा है कोई, अल्लाह अल्लाह। और अगर कोई तबलीग में अपनी बात करना चाहता है, अपने साथ जोड़ना चाहता है, तो उसको सलाम है, उसको क्या चाहिए हमें, वो हमें नहीं चाहिए। इसलिए ये तो सब अल्लाह ही की वजह से है, अपने आखिरत बनाने के लिए। तो हम जितने मुशक्कतों को बर्दाश्त करेंगे हम बनेंगे, खाने की कमी को बर्दाश्त करेंगे हम बनेंगे। साथियों की तरफ से सख्त बात आ जाए तो क्या बात है, अगर उसने दो चार बातें सुना दी, हम कह नहीं अगली बात तो सुना दो, वरना क्या चीज है। हमारा जैसे हम नमाज सीखते हैं, हम जिक्र सीखते हैं, हम रात को उठकर तहज्जुद सीखते हैं और हम अल्लाह से मांगना सीखते हैं, इस तरह सब्र सीखे। क्या सीखे? सब्र सीखे। अपने तबीयत के खिलाफ कोई बात सुने, सब्र करे, बर्दाश्त करे, अल्लाह पाक इस बंदे के सब्र को उसके बदलने का जरिया बना देगा, वरना उसके शर से अल्लाह बचा देगा, उसके शर से अल्लाह पाक बचा देगा। इसलिए हम इन सब अमाल की इनफरादी तौर पर भी, अपने अमाल का एहतमाम और इज्तिमाई तौर पर भी हो, जहां जाए वहां से जमात। देखो, किसी जगह आग लग जाए, खुदा न खास्ता सैलाब आ जाए, लोग डूब रहे हैं, क्या उनका बचाना काम है या नहीं है? जाकर उनको क्या करना? हमें इस बात का यकीन हो कि अगर एक बंदा नमाज नहीं पढ़ रहा है, हमने किसी को ताना नहीं देना है, एक घर में नमाज का माहौल नहीं है और उसकी दुकानें हैं, दुकानों में दीनदारी नहीं है, अहकामात पर हराम का इर्तिकाब, तो हम यकीन रखें कि यहां आग लगी हुई है। क्या है आग? ये तो बाद में जब लगती है फिर हम परेशान होते हैं, और जब मसले पैदा हो जाते हैं कारोबारों में, वो हमें परेशान करते हैं। बेदीनी हमें परेशान नहीं करते। एक बंदा नमाज नहीं पढ़ रहा, इतना बड़ा फरीजा, और वो दुकान में इतना दिल लगा हुआ है कारोबार में, क्योंकि तो मेरे पास नमाज पढ़ने का, नमाज सीखने का वक्त नहीं है, तो क्या इस आदमी की कब्र बनेगी, आखिरत बनेगी, इसकी दुनिया बनेगी? और फिर भी क्या कहता है? परेशानी है जी, परेशानी है। क्या परेशानी है? पैसा है तो क्यों परेशान हो, नौकर है तो क्यों परेशान हो, बीवी है तो क्यों परेशान हो, बच्चे हैं तो क्यों परेशान हो? कहते बस दिल मुतमईन नहीं है। तो दिल का इत्मीनान थोड़ा इससे होता है, दिल का इत्मीनान तो अल्लाह की याद से। और अल्लाह की याद का मतलब सिर्फ ये नहीं है, ये सिर्फ मैंने बढ़ा दिया कि सिर्फ तस्बीह और जिक्र और ये कि बस ये इत्मीनान नहीं। अल्लाह के याद का मतलब ये है कि अगर नमाज का वक्त है तो अल्लाह की याद ये है कि नमाज पढ़ो। हलाल कमाने का वक्त है, हराम के बीच में आ गए तो जिक्र ये कि हराम से अपने आप को बचाओ, हलाल कमाओ, हराम खाने से अपने आप को बचाओ, हलाल खाओ, ये जिक्र है। हराम देखने से बचाओ अपने आप को, और नजरें नीचे रखो। जाकिर के लिए नजरें नीचे रखना कोई मसला नहीं है। आज हमारे लिए मसला बना हुआ है, कहते नजरों की हिफाजत नहीं होती, नजरों की हिफाजत नहीं होती। मेरे मोहतरम दोस्तों, दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारना आसान होता है अगर बंदा हिम्मत कर ले। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अपने इंफरादी अमाल का भी एहतमाम, तो जमातें निकालना, यानी यकीन जाने हमारे अंदर भी ये चीज नहीं है। हमने इसको इस तरह समझा है कि कोई बात नहीं को, मैं ये नहीं कहता कि हर एक के जिम्मा है, वो उलमा के अहकामात है, लेकिन इतनों के जिम्मा तो है कि काम बन जाए। किसी जगह आग लग जाए तो क्या सबके जिम्मा है कि वहां जाकर निकाले, या सैलाब है, लेकिन इतनों के जिम्मा तो है कि कुछ तो हो जो उसको निकालने की कोशिश करे। सब आ जाए पूरी दुनिया से वहां, तो ये तो नहीं है, लेकिन जो वहां है तो इतने तो जो हिम्मत करके वहां जाकर इस मसले का हल करने की तो कोशिश करे।
अगर एक जगह अहकामात मिटे हुए हैं, सुन्नत जिंदगी नहीं है, सबसे बड़े खैर ख्वाही की बात है कि बंदा उनके पास जाए, मिन्नत समाजत करके और खिदमत करके, और उसको अपने घर से निकालना, यह उसके साथ सबसे खैर ख्वाही है। जो दीन सीखे बगैर वहां हुआ है, बाप है रोक रहा है, तो ये जहालत में उसका दुश्मन बना हुआ है। बड़ा भाई है रोक रहा है, अफसर है रोक रहा है, कहते छोटे छोटे बच्चे हैं तुम्हारे, उन बच्चों का भी ख्याल रखो। उन बच्चों का क्या करो? ख्याल रखो। क्यों? तुम निकलोगे तो तुम्हारा पैसा खर्च होगा, और घर में भी कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर ये कहा जाए कि निकलोगे तो 1 महीने में 2 लाख रुपया मिलेगा, तो फिर कहा जाएगा बच्चों का ख्याल रखो, निकलो ना। वहां बच्चों का ख्याल रखो, निकलो, और यहां बच्चों का ख्याल रखो, न निकलो। दीन को बीच में से निकाल ही दिया। हालांकि आज जितने इदारों में जो भी मसले बने हुए हैं, उन इदारों के जो हुकूमत के एतबार से जो उसूल है, उन उसूल के मुताबिक न चलना, बावजूद इसके कि उन उसूल का इल्म है, लेकिन ईमानदारी के न होने की वजह से, सच न होने की वजह से, अदल के न होने की वजह से मखलूक खुदा की खिदमत को अपनी सआदत नहीं समझता है। इस वजह से वही अच्छे से अच्छा इदारा वो क्या बैठ जाता है और नुकसान हो जाता है। तो क्या इन बंदों को ठीक करोगे या दीवारों को ठीक करोगे? कहते कानून तो अल्लाह की तरफ से जो नाजिल हुआ है, वो उसको कोई, उसमें कोई ठीक होने की कोई चीज है? वो तो है ही ठीक। उसमें क्या इजाफा करोगे? उसमें क्या कमी करोगे? इसलिए वो सबसे बदतर इंसान होता है जो अल्लाह ने एक निजाम दिया है, अल्लाह ने एक निजाम दिया है जान के इस्तेमाल का, माल के इस्तेमाल का, और ये उस निजाम को बदले, उस निजाम को क्या है, बदलने की कोशिश करे इस तरह कि नहीं, उससे मखलूक खुदा का फायदा नहीं है, और जो निजाम हम बना रहे हैं इसमें मोहल्ले का, बस्ती का, शहर का, इलाके का, मुल्क का अल्लाह के मुकाबले में आकर, अल्लाह के बंदों के खैरख्वाही का लेबल लगाकर, अल्लाह के बंदों को अपनी ताकत और अपनी कुव्वत जो अल्लाह ने दी है, वो इसलिए दी है कि अल्लाह के बंदों को अपने सामने झुकाओ, या अल्लाह के बंदों को जो तुम चाहते हो उसी पर चलाओ। अल्लाह ने जो ताकत दी है वो इसलिए दी है कि अगर इस दीन के खिलाफ कोई काम है, हाथ से रोक सकते हो तो रोको। जुबान की ताकत अल्लाह ने जो दी है, तो अगर तुम अच्छे तरीके से बात कर सकते हो तो बात, उसको गलत से रोकने के लिए बात करो, वरना दिल से तो उसको बुरा जानो। जाए कि दिल से उस चीज को बुरा जाना जाता है जो अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने बंदों के लिए बताया, उसको बुरा जाना जाता है। और जो अपने बना हुआ निजाम है, और अपने बने हुए कानून है, और अपने बने हुए तरीके हैं, या अपने बने हुए या उन जैसे इंसानों की तरफ से जो निजाम आया होता है, उसको वजूद देना, उसको अपने पर जमीन से भी समझना, यह इंसान कितना दूर हो जाता है। क्या इंसानों पर उसके दीनदारी के लिए काम करना कोई काम नहीं है? अब इस तरह तो नहीं बनते ना कि बंदा बातें सुना दे। अगर सुनाने में फायदा है तो जरूर करे, उसका हम इनकार नहीं कर रहे। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है रोकने की, जरूर रोके, लेकिन एक बंदे को बनाओ। क्या करो? वो बीमार हो गया बेचारा, पागलों की बातें कर रहा है, हाँ कोई भी हो, पागल तो अस्पताल में नहीं भेजा जाता है, या उसको कहते नहीं पागलों की बातें न, चलो उधर भेजा जाता है, वो जो दूसरा जगह है, ताकि उसकी शर से बचे। लेकिन यह है कि उसका इलाज करना काम है। अगर एक आदमी बेदीनी की बात कर रहा है और बेदीनी के तरतीब पर अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर रहा है, तो इससे बड़ा पागल कोई है? और ये अपने आखिरत को कितना खराब कर रहा है अपने माल के नशे में। इसलिए कह रहे मिलो लोगों से, प्यार मोहब्बत से मिलो, और दीन के अंदर ताकत है जो बंदे को बदलता है। अपनी ताकत से कोई किसी को नहीं बदल सकता। ये अपनी ताकत तो ऐसी चीज होती है, ये अंदर नफसानियत के, अल्लाह बचा दे। जब बंदा उस पर आ जाता है ना, अल्लाह पर नहीं करना है, यकीन जाने बाप के सामने कह देता है नहीं करना है, बस चलो करवा दो। अपने बड़े के सामने, उस्ताद के सामने खड़ा हो जाता है, क्या वाला डंडा लगा दो तो देखो तुम्हारा क्या बनेगा, नहीं करना है। उस्ताद के सामने खड़ा हो जाता है, किसी अफसर के सामने खड़ा हो, नहीं करना है, बस क्या करो। तो जब बंदा बिगड़ जाता है
اس کو کوئی सुधरने का कोई रास्ता नहीं, कहते मैं ठीक करूंगा, कैसे ठीक करोगे? अगर ठीक करने का यह रास्ता होता तो अल्लाह नबियों को ये ताकतें देकर और ये डंडे देकर और उसको क्या करते कि ठीक करो। फिरौन के पीछे मूसा अलैहिस्सलाम को डंडा देकर इस फिरौन को क्या करो, ठीक करो। नहीं, ठीक करने का तरीका होता है, उसका इलाज होता है। अब मसलन बंदा अस्पताल में गया तो क्या उसको डंडे से ठीक करोगे? या उसको जो है कोई और उसको इलाज करो, उसको दवा दो, उसको परहेज बताओ, उसके प्यार मोहब्बत के साथ लो। यही बंदा है आज डॉक्टर के गिरेबान को हाथ लगा रहा है, आज कल उसका शुक्रिया अदा करेगा, डॉक्टर साहब मैंने बहुत परेशान किया तुम्हें और मैंने बहुत तुझे में बात सुना दी थी, वो नशे में था, वो मैं फलान था। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने दीन सीखना भी है और लोगों को किस तरह दीन पर लाना है। यकीन जाने ये इतना नाजुक और जरूरी काम है कि कोई पूरी जिंदगी भी लगा रहे ये नहीं कह सकता कि मैं स्पेशलिस्ट होता है, क्या होता है, वो बन गया है कि बस अब मैं ठीक हो गया हूं। मौत तक अपने बारे में बंदे को कभी इत्मीनान न हो जाए कि शैतान ये कह रहे तुम्हारे जैसा भी कोई नहीं, पहले तो बिगड़े हुए थे, अब तो तुम नमाजी बन गए, अब यहां आ जाता है, अब तो तेरे जैसे कोई है नहीं, तो अब यहां आ जाता है, पता नहीं कहां से वो अपना वो बना लेता है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने इन अमाल पर लाने की कोशिश करना है, तो जमातें निकालनी है। ये बातें दो चार चक्कर घूम फिर कर आगे खाना भी वक्त पर है। मैं नहीं कहता कि कोई निजाम बना दे, यहां कोई हड़तालें नहीं है कि जमात नहीं निकलती, हड़ताल है। अब मोहल्ले वाले भी परेशान है कि जमात वाले खाना नहीं कहते, हम भी कहते, और हम उन्हीं पर जोर लगाते कि हम तुम्हारा खाना नहीं खाते। भाई वो बंदे के अंदर इतना गम हो और वाकई इतना फिक्र हो कि खाना खाने को दिल न करे। अब गम हो जाए, किसी जगह फुदकी हो जाए, तो क्या खाने के बाइकाट होता है? लेकिन वो बाप मर गया है, वालिदा पोत हो गई है, बहन पोत हो गई है, तो खाना, लेकिन दिल नहीं करता खाने को, सदमा दिल नहीं करता खाने को। तो हमारे अंदर ऐसी बात पैदा हो जाए कि हम बेदीनी को देखकर और अपना हाल जब सामने आए कि मेरा क्या हाल है, उसको देखकर और मोहल्ले वालों को देखकर हम इतना फिरे। देखो, हम किसी एक फर्द को एक सेकंड के लिए भी नहीं निकाल सकते, यह अल्लाह का काम है, यह अल्लाह का काम है। लेकिन हमारे जिम्मा क्या है? हमारे जिम्मा यह है कि अपनी सआदत समझकर दूसरों के खैरख्वाही में हम जितना थकेंगे, मिन्नत समाजत करेंगे, अपने आराम को मौखर करेंगे, इतना अल्लाह हमारी मदद करेगा। इसलिए हम इन सब चीजों को कोशिश करें। अल्लाह हम सबको तौफीक दे।